है इस मामले पर? पहले तो मेरे को बताने दो कि ये आज जो हो रहा है, मैं 50 साल से फ्रॉम 1969 से मैं मार्केट से जुड़ा हुआ। मैंने ज्वाइन किया 69 में। 15 साल तो मैंने देखा था खाली वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्टिज्म। हम लोग ने देखा था मार्केट की कुछ कोई तरफ कोई दिखता नहीं था, कोई इधर मार्केट में कोई आ नहीं रहा था, कोई मेरे साथ में ज्वाइन करने के लिए एमबी और बीकॉम आता नहीं था. So it is in that situation, not chartered accountant, MBA, BCom even. So today the whole situation has changed, and why so? And what I find today, the enthusiasm is there, not only in the investors on capital markets, but we are seeing enthusiasm across India in industry, in business, in spite of COVID. I think that is a very important aspect which I mentioned to you, in spite of COVID. And the COVID may last for some time, but not all the time in our lifetime. So I do think we are going to a different era. Global, I was talking to some very important people just few days back, and even before that. People, I have started looking at India as an alternate to source. So we have started taking advantage, but we have yet to go some way. Industry, apart from Prime Minister Narendra Bhai ji, and they are all working very hard and trying to meet and talk to people online or actually physically, if anybody wants to meet, is meeting and encouraging. The message is very clear and straightforward that we are here to grow. We are here to see that if industry requires support, we are here. Now, this kind of message was never given in past. में कभी भी message ऐसा मिला नहीं है, ऐसा enthusiastic government wanting people to see that youngsters come out with the different ideas. We have seen how our online companies have done. Valuation is apart. That what is important is a macro side. Can we grow in next 20 years, 10 years, 5 years? Yes. बिल्कुल 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 सर, लेकिन आपने ये जो चीज़ कही ना, मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि एक तरफ सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, दूसरी तरफ पैंडेमिक के चलते कंपनीज़ की जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी बढ़ी है और मार्केट में एक रिकवरी का, ओपनिंग अप का जो थीम है वो तो है ही। तो क्या फिर ये कहा जा सकता है कि इस समय जो मोमेंटम हमने बाज़ार में देखा है वो सस्टेन कर सकता है? मेरे हिसाब से करेक्शन आना तो अच्छा ही है। करेक्शन में लेना भी, people have to come forward. There are sometimes you find the various reasons, logic point of view also, you see suddenly the coal shortage हो जा सकता है, suddenly एक कुछ का problem आ सकता है, but these are all temporary situations will develop. तो people will have to have patience. Investment is not that today लिया और कल बेच दिया। आज इतना दिखा है मैंने कि investors, small investor, and I'm very happy and congratulate you. ET स्वदेश जो आपने शुरू किया है, तो हिंदी में आप लोग काफी लोगों को इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई थिंक आपका जो मेरा एसोसिएशन है सिंस माय when I joined also, Economic Times was an important newspaper, and today ET Now, which you started some years back, and today is now we are starting in a different language, but they're all good thing for generally for the investors' education, investors' information. So I'm very glad that what you are doing. चले बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ही मार्केट रिवॉर्ड करते हैं और ऐसा देखने को मिलेगा भी। लेकिन अगर यहाँ हेमेंद्र जी बात करें कि कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कौन सी यहाँ आपकी प्रेफर्ड पिक्स होंगी?
इसी बात में क्या है कि सब सेक्टर, सब large corporates are doing extremely well. They are thoughtful. They are planning well. Tata Group है, Reliance है, whether Birla Group है, आप Adani Group है, आप नाम बोलिए, आप सब ग्रुप का focus is just now how they can grow. Look at what is happening renewable में, कितना scope है renewable में, आज renewable solar power में, आज मैन्युफैक्चरिंग, आज फोन मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होने वाला है एप्पल का. सो द क्वेश्चन ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग वेयर पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड वांटिंग टू टेक एडवांटेज. वी रिक्वायर वन और टू थिंग्स व्हिच आर हो सके, वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप. वी डू रिक्वायर टू सी दैट more and more technical institutions developing, and maybe government will come forward to give incentives, and it should be like a business training institute. And in that, people can immediately, if I require 200 people or 500 people or 5,000 people, I can be able to recruit them. और जी अमित भाई, आपने बोला कि रिलायंस ग्रुप अच्छा कर रहा है, बिरला ग्रुप अच्छा कर रहा है, टाटाज अच्छा कर रहे हैं. आपने हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को बहुत शुरुआत से देखा है, कॉर्पोरेट इंडिया को भी आपने काफ़ी नज़दीकी से समझा है. तो अभी आपके हिसाब से नेक्स्ट 2-4 साल आपको कैसा नज़र आ रहा है? जिस हिसाब से हमने कोविड से लड़ाई लड़ी है, रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी इंडिया में बढ़ती जा रही है. अगर डीमैट अकाउंट देखें, म्यूचुअल फंड फोलियोज देखें, तो आपको भारतीय बाजार एक अच्छे विकेट पर नज़र आ रहे हैं, अच्छी ट्रैजेक्टरी पर नज़र आ रहे हैं. एक तो यस होपफुल है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए. इंडस्ट्री भी अभी आप देखो 10 साल इतना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ नहीं था. अभी सडनली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पीपल आर ग्राउंड फील्ड, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशंस हो रहा है. सो इट इज दैट शोज इटसेल्फ दैट हमें फ्यूचर ग्रोथ दिखेगा और ग्रोथ होने वाला है. फॉरेनर्स आर, फॉरेन लार्ज कंपनीज आर इंटरेस्टेड, पीपल आर वांटिंग सोर्स इंडिया से प्रोडक्ट करेंगे. और क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान और रखना पड़ेगा, और वी शुड बी नॉट लेस देन एनीबॉडी इन प्रिपेयर आवर क्वालिटी वाइज. दैट इज वन थिंग वी रिक्वायर. जी सर, आपने कई विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी निवेशकों के साथ बहुत सालों से काम किया है, एंड यू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट. ये जो भारत में काफ़ी सेंसिटिविटी बनी रहती है एफआईआईज़ को लेकर, उनके फ्लो को लेकर, जिसमें अभी थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, क्या इसे हम टेम्पररी ही समझे एंड इट विल बाउंस बैक? I personally feel the flows will increase. Up and down will also depend. Sometimes वो लोग का मार्केट कैसे चलता है. वो लोग का मार्केट ठंडा होता है तो कभी वो लोग भी इधर ठंडे हो जाते हैं. बट वी आर सीइंग इट वेरी क्लियरली दैट इंडिया के अंदर फ्लो आना, इंडिया का वेट भी बढ़ना इंडेक्स में, वो सब चालू है. सो आज इंडिया में पैसा आएगा, वी शुड बी एबल टू एब्सॉर्ब इट. दैट इज इम्पोर्टेंट. So valuation should not go up too high, but it should be attractive for. So growth has to be there to make it attractive, and I think India will have a lot of growth here. So I think there is no reason why the foreign money will not come in. We just have to tell our stories through the various investment bankers to the world. Also today, unlike other times, retail investor is also the getting backbone of investing side of it here. They are investing through mutual funds or investing directly. The numbers have increased, and it will increase multiple times than what I can see today. So I think I'm very optimistic about particularly what the government intentions which are there. As long as that is there, that let everybody get rich, everybody get jobs. I think these are very important aspects in the mindset of the business people, which will help them to grow. चलिए ठीक है, बिल्कुल. तो एफआईज के फ्लोज को लेकर अपनी राय दे रहे थे हेमेंद्र जी. अब इन टोटलिटी अगर इस नक्शल में हम सारे आपसे जो बात कर रहे हैं उसको कंक्लूड करना चाहें कि आप
क्या सक्सेस का आप क्या मंत्र मानते हैं? आपने तो इतने सालों से डीप रिच एक्सपीरियंस है आपका, क्या सलाह देना चाहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, HNIs को, लॉन्ग टर्म में कैसे पैसा बनाने की सलाह देंगे? एक तो मेन चीज देखना चाहिए इन्वेस्टर को, मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट नहीं भी हो सकती है, बट मैनेजमेंट का पास्ट 10 years का रिकॉर्ड और 5 साल का रिकॉर्ड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंगल, एंड आर दे लुकिंग एट अ ग्रोथ of their company, whether there is any particular specialty is there in that particular business where they will be able to grow. So there are various things research people can be in touch with various research houses and then make a decision. People like you, I'm happy they will be able to help some of the investors and guide them also. जी हिमेंद्र भाई, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए बाजार पे और मार्केट के नज़रिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु गुप्ता, मितेश पंचाल, शर्मिला